morning everyone. So let us start with calorimetry part 1. In this section we are going to deal with the basic sums based on calorimetry part 1, and in the second part we are going to deal with the sums which are based on latent heat. Okay, so let us start with the first sum. Now the first sum says that 50 gram of a metal piece. So the mass of the metal piece is given to you as 50 grams. It is at 27 degrees Celsius. So the initial temperature is given to you as 27 degrees Celsius. It requires 2400 joules of heat. So the amount of heat energy, which is denoted by capital Q, so it requires 2400 joules of heat energy to attain a temperature of 327. So the final temperature required over here is 327 degrees Celsius. So you have to find over here the specific heat capacity of this metal. Okay, specific heat capacity, which is denoted by the alphabet small c. So let us see, very simple sum. For 2 marks it can be asked over here. So here the mass of the metal is given, initial temperature, final temperature. So let us see what is the change in temperature over here, delta T. So that is T2 minus T1. So 327 minus 27 means the change in temperature over here is 300 degrees Celsius. Now the formula to be used is Q is equal to mc delta T. Always remember, you have to write the formula, you have to box up the formula, and the next step is to substitute in the formula. तो Q हमें दिया हुआ है 2400, mass is given as 50, specific heat हमें find out करना है, change in temperature we got is 300. So if you do the shifting, so 2400 divided by 50 into 300 will give you C. So 2 zeros cancel over here, 3 ones are, 3 eights are. So we get C as 8 upon 50. Roughly if you do 2 fours are 8, 2 25s are. So 4 upon 25, which gives you 0.16 joules पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. अभी ये यूनिट याद कैसे करने का है, अगर तुम ध्यान से फॉर्मूला में देखोगे तो यहाँ पे फ्रॉम दिस फॉर्मूला हमें C मिलेगा Q अपॉन M डेल्टा T. तो C का जो यूनिट है Q इज़ हीट विच इज़ मेजर्ड इन जूल्स, अपॉन मतलब पर, मास इज़ मेजर्ड इन ग्राम्स क्योंकि यहाँ पे मास ग्राम्स में दिया है, एंड डेल्टा टी इज़ चेंज इन टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में मेंशनड है. तो तुम्हें कोई भी यूनिट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला देख के तुम अपने आप यूनिट बता सकते हो कि फाइनल यूनिट. आफ्टर फाइंडिंग दिस डोंट फॉरगेट टू राइट द फाइनल आंसर. C इज़ इक्वल टू 0.16 joules per gram degree Celsius. So this is the first sum. Again it was asked in ICSE board, okay, 2014. So you can copy this sum, take a screenshot. By that time we go to the next sum of ours. Okay, now let us start with our second question. Now our second question says, let us understand, 40 gram of water. So the mass of water is given as 40 gram at 60 degrees Celsius. So the initial temperature of water is 60 degrees Celsius. It is poured in a vessel which contains 50 gram of water. So this is added to another vessel जिसमें 50 gram of water already है, which is at 20 degrees Celsius. So this is water. This is added in a vessel containing water. Vessel containing water. Okay. Now the final temperature after mixing this two, the final temperature we get of the mixture is 30 degrees Celsius. अभी अगर हम ध्यान से ये देखेंगे, इनिशियली टेम्परेचर जो वाटर का था 60 डिग्री था जो हमने ऐड किया है, मतलब दिस इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बी हॉट वाटर. इट इज़ एडेड टू अनदर वाटर विच इज़ 20 डिग्री, सो दिस इज़ गोइंग टू बी कोल्ड वाटर. कंटेंट समझ के लो, हॉट वाटर है, सो दिस इज़ गोइंग टू लूज हीट. ओके, एंड दिस इज़ कोल्ड वाटर, सो दिस इज़ गोइंग टू गेन हीट. ओके, so as per the principle of calorimetry, abhi solving karte time the first statement you have to write as per the principle of calorimetry. So what does the principle of calorimetry says? Heat gained, जो भी object heat gain कर रहा है,
इट शुड बी इक्वल टू वॉट एवर हीट इज़ लॉस्ट बाय द अदर. मतलब ये वाटर जो हीट लूज कर रहा है, इट शुड बी गेन्ड बाय दिस वाटर, ओके, विच इज़ एट 20 डिग्री सेल्सियस. नाउ हीट का मतलब है Q, एंड वी सॉ इन द प्रीवियस सम Q का फॉर्मूला था mc डेल्टा T. तो सिंपल है, हीट गेन्ड है मतलब ये गेन कर रहा है कोल्ड वाटर, तो यहाँ पे आएगा m2c2 डेल्टा T, और ये हीट लूज कर रहा है, सो m1c1 डेल्टा T. ठीक है, अभी यहाँ पे जो चीज़ है वो फाइंड आउट करनी है डेल्टा T. इनिशियली वाटर, अभी हम पहला हीट गेंड पे आ जाते हैं. इनिशियली वाटर 20 पे था, अब वो आ गया है 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसने 10 डिग्री हीट गेन की है यहाँ पे, करेक्ट. सो यहाँ पे आ जाएगा मास इज़ 50. ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का दिया हुआ है क्वेश्चन में 4.2 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. सो हियर वी आर गोइंग टू टेक 4.2 इनटू हीट उसने कितना गेन किया है 10 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे मास ऑफ वाटर लॉस्ट का 40 है. ओके, स्पेसिफिक हीट इज़ अगेन 4.2. अब यहाँ टेम्परेचर तुम देखोगे तो 60 डिग्री से लूज होके 30 पे आ गया है. सो फ्रॉम 60 टू 30 दैट मीन्स इट इज़ लॉस्ट 30 डिग्री सेल्सियस. सो दैट इज़ द हीट लॉस्ट. नाउ यू हैव टू इक्वेट ओवर हियर. ओके, नाउ प्लस यहाँ पे दे हैव ऑल्सो सेड वेसल. अभी ये जो भी हीट लूज करेगा इट विल बी गेन्ड बाय वाटर प्लस वेसल. ओके, सो यहाँ पे प्लस हो जाएगा हीट गेन्ड बाय वेसल, यहाँ पे सॉरी. सो दिस विल बी प्लस हीट बाय वेसल गेन्ड. ओके, सो यहाँ पे ऐड हो जाएगा हमारा 50 इंटू, जस्ट अ मिनट, सो 50 इंटू 4.2 इंटू 10, ये तो वाटर का हो गया. सो दिस इज़ ऑफ वाटर प्लस, जब हम वेसल का लिखेंगे सो द फॉर्मूला विल बी हीट कैपेसिटी ऑफ द वेसल मल्टीप्लाइड बाय द चेंज इन टेम्परेचर. अगर वाटर 20 पे तो वेसल भी 20 डिग्री पे रहेगा. सो 20 टू 30 अगेन 10 डिग्री का चेंज हुआ है. दिस शुड बी इक्वल टू 40 इंटू 4.2 इंटू 30. सो नाउ लेट अस सॉल्व दिस. 40 इंटू 4.2, सो इस हिसाब से हीट कैपेसिटी विल बी इक्वल टू 40 इंटू 4.2 इंटू 30 माइनस, ये पूरा ब्रैकेट इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 50 इंटू 4.2 इंटू 10 द होल डिवाइडेड बाई ये 10 नीचे आ जाएगा 10. So this comes to 294 joules per degree Celsius. Very simple question. Okay, ये हमें heat capacity मिला है vessel का. Okay, so again this was asked in board exam, that is 2009. Okay, so take a screenshot फटाफट and then we move to the next question. Okay, let us come to our third question now. Now third question says 200 grams of hot water. So here we are having hot water. Okay, mass is given as 200 grams at 80 degrees Celsius. So temperature is given as 80 degrees Celsius. It is added to 300 grams of cold water. So in the other case we have cold water. Okay, so the mass is given as 300 grams. This is M1, this is M2 at 10 degrees Celsius. Now obviously when we add it, the temperature of the mixture is going to change. So you have to find the final temperature of the mixture. Okay, now here you are going to neglect the heat taken by the container. इसके पहले के सम में हमने जो किया था उन्होंने मेंशन किया था वेसल का निकालने के लिए, बिकॉज दे आर कंसिडरिंग कि जब भी हम हॉट वाटर कोल्ड वाटर के साथ वेसल में मिक्स करेंगे, some amount of heat will be taken by cold water and some amount of heat will be taken by the vessel also. They will mention in the question. तो अगर वो क्वेश्चन में मेंशन करते हैं कि वेसल ने भी हीट लिया है तो ही लिखते टाइम तुम्हें वेसल का हीट कंसीडर करना है. इफ़ दे आर सेइंग इट इज़ नॉट, देन यू आर नॉट गोइंग टू कंसीडर द हीट टेकन बाय द वेसल ओवर हियर. सो यहाँ पे टेम्परेचर था 10 डिग्री. सो यहाँ पे डायरेक्टली वी विल राइट बाय द प्रिंसिपल of
calorimetry. So you will get the principle of calorimetry saying that heat lost by the hot water should be equal to the heat gained, okay, by the cold water. अभी यहाँ पे हमें फाइनल टेम्परेचर नहीं पता है, सो वी आर कंसिडरिंग दैट एज टी. अभी 80 डिग्री से हॉट वाटर लूज होके टी पे आ रहा है, तो कुछ ना कुछ माइनस होगा 80 में से. सो चेंज इन टेम्परेचर ओवर ईयर इज गोइंग टू बी 80 माइनस टी. सो यहाँ पे फॉर्मूला फर्स्ट Q1 M1 डेल्टा टी एंड यहाँ पे आएगा Q2 M2 डेल्टा टी. सॉरी, सो दिस इज गोइंग टू बी M2 delta T. Okay, or MC also you can write, as I told you, M1 C1. So let us write it as M1 C1. यहाँ पे M2 C2. ना यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ गिवन. अब एक चीज़ तुम्हें याद रखनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो उन्होंने दी हुई है वो है 4200 जूल्स पर kg डिग्री सेल्सियस. इट इज़ kg. यहाँ पे तुम्हें जो मास दिया है वो ग्राम में दिया है, तो स्पेसिफिक हीट तुम्हें ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको. सो हाउ डू यू कन्वर्ट kg इनटू ग्राम? सो दैट विल बी 4200 डिवाइडेड बाय 1000, ओके, बिकॉज इट इज़ पर kg. डायरेक्टली kg टू ग्राम इज मल्टीप्लाई बाय 100, बट यहाँ पे पर kg, सो डिवाइड हो जाएगा. सो दैट गिव्स यू 4.2. तो यू हैव टू टेक इट एज 4.2. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का यहाँ पे दिया हुआ है 4.2, ओके. मास ऑफ वाटर यहाँ पे 200 है. चेंज इन टेम्परेचर 80 से रेड्यूस होके टी पे आ रहा है, ठीक है. सो 80 माइनस टी. अगेन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2, मास कोल्ड वाटर का दिया है 300. 10 डिग्री से गेन होके टी पे जा रहा है, सो ये हो जाएगा T माइनस 10, ओके. नाउ 4.2 कट, 2 zeros cut. So you get 2 into 80 minus T is equal to 3 into T minus 10. Let us open the brackets. So 160 minus 2T is equal to 3T minus 30. So 160 plus 30 is equal to 3T plus 2T. So 190 is equal to 5T. So temperature आ जाएगा तुम्हारा 38 डिग्री सेल्सियस. So that is your final answer. So again, very simple question. It was asked in the ICSE board 2011. So you can take a screenshot of this or copy it down. We'll give you 2 seconds. Now we go to one theory question जो usually board exam में पूछा जाता है. Let us see what is the theory question over here. The question says that specific heat capacity of a substance A. एक सब्सटेंस ए है जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है 3.8 जूल्स पर ग्राम केल्विन, एंड देर इज़ अनदर सब्सटेंस बी जिसका हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है 0.4 जूल्स पर ग्राम केल्विन. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड ओवर हियर, विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट? विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट? अभी यहाँ पे सबसे पहले समझ के लो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता क्या है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मीन्स कोई भी सब्सटेंस को हीट होने के लिए, टेम्परेचर राइज करने के लिए पर ग्राम ऑफ सब्सटेंस या पर केजी सब्सटेंस को कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लग रहा है. अगर सब्सटेंस ए को 3.8 लग रहा है, सब्सटेंस बी को 0.4 लग रहा है, मतलब सब्सटेंस ए को हीट अप होने के लिए ज़्यादा एनर्जी लग रहा है कंपेयर टू सब्सटेंस बी. सो ऑब्वियसली अगर ए को ज़्यादा एनर्जी लग रहा है तो उसको टाइम लगेगा हीट होने के लिए, और सब्सटेंस ई जल्दी हीट हो जाएगा. दैट मीन्स सब्सटेंस बी इज़ गोइंग टू बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. तो सब्सटेंस बी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है. अभी सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, गिव रीज़न फॉर योर अबव आंसर. अभी इसका रीज़न मैंने अभी जस्ट आपको बताया यहाँ पे. व्हाट विल बी द रीज़न? सिंस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस बी
is less, so it will get heated faster compared to A. Okay, इसकी वजह से it is going to be a good conductor of heat. थर्ड क्वेश्चन पूछा है, if A and B are liquids, then which is more useful इन कार रेडिएटर्स. ठीक है, अभी कार रेडिएटर जो रहता है, ओके, जब वो गर्म हो जाता है, कार रेडिएटर का काम रहता है कार के इंजन को ठंडा रखना. तो कार के इंजन को ठंडा कैसे रखेगा? जब वो मोर अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करते जाएगा. अभी बी सब्सटेंस को कम हीट लगता है हीटअप होने को, तो ये तो बहुत कम हीट एब्जॉर्ब करके जल्दी गर्म हो जाएगा, जबकि सब्सटेंस ए को ज़्यादा हीट लग रहा है. ठीक है, तो सब्सटेंस ए, सिंस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए इज़ मोर. ठीक है, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा गर्म होने को, सो इट कैन एब्जॉर्ब मोर हीट, सो इट इज़ यूजफुल इन कार रेडिएटर्स. ठीक है, so this is how you are going to answer this question. So it was asked in ICSE 2014. Clear? So you can copy this down or take a screenshot. Okay, let us go to the next question, 4-mark question. The question says, हमने जो 3 mark का question किया था उसी का एक थोड़ा सा extension है. There is a object of mass 500 grams. So I will write object over here. ठीक है, mass of the object is given as 500 grams. It is heated to a temperature of, तो इसको M1 पकड़ेंगे, temperature heated to 45 डिग्री सेल्सियस. अभी इसको हमने पुट किया है इन वाटर. दिस ऑब्जेक्ट इज पुट इन वाटर. द मास ऑफ द वाटर M2 इज गिवन एज 50 grams and the temperature of water is given as 20 डिग्री सेल्सियस. इसको हीट करने के लिए फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने स्टेट किया है निग्लेक्टिंग द हीट टेकन बाय द वेसल. तो यहाँ पे हमें वेसल की हीट कंसिडर नहीं करनी है. ठीक है, जो भी हीट ऑब्जेक्ट लूज़ करेगा वो टोटली वाटर गेन करेगा. यहाँ पे यू हैव टू फाइंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल. सो सी तुम्हें फाइंड आउट करना है क्या हो जाएगा. ठीक है, सो अगेन सिंपल है यहाँ पे, बाय प्रिंसिपल of calorimetry. So the principle of calorimetry says heat lost by the hot object is equal to heat gained by the cold object. ठीक है, so heat lost by the hot object, that is M1 C1 delta T is equal to M2 C2 delta T. अभी ऑब्जेक्ट का जो स्पेसिफिक हीट है वो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, ऑफ द मेटल, दैट ऑब्जेक्ट इज अ मेटल, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट. ओके, सो लेट अस सी हाउ वी विल फाइंड आउट. मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है 500, स्पेसिफिक हीट हमें निकालना है. टेम्परेचर देखो 45 से 25 रिड्यूस हो रहा है, सो 45 माइनस 25. मास ऑफ वाटर 50, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का क्वेश्चन में दिया हुआ है 4.2. टेम्परेचर ऑफ वाटर 20 से इंक्रीज होके 25 पे जा रहा है, सो 25 माइनस 20, सो 500 इंटू C1 इंटू 45 माइनस 25 गिव्स यू 20 इज इक्वल टू 50 इंटू 4.2 इंटू 5. तो तुम्हारा C1 आ जाएगा 50 इंटू 4.2 इंटू 5 अपॉन 500 इंटू 20. ठीक है, सो ज़ीरो कट ओवर ईयर, 5 1 ज़ा 5 10 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2.1, so you get 2.1 upon 20. Okay, so that is equal to 21 upon 200 roughly. तो इसका आंसर आ जाता है 0.105 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. So this is your final answer. Clear?
So just copy it down properly, take a screenshot, then we'll move to the next question. Okay children, now let us come to the last question. So this question you're going to solve it as a homework question. Okay, and you're going to post your answers in the comment section. So let us see what the question says. A calorimeter of mass 50 gram. Okay, so there is a calorimeter, यानी कि इन्होंने यहाँ पे वेसल को कंसिडर किया है. कैलोरीमीटर मतलब यहाँ पे वेसल आ जाएगा. सो कैलोरीमीटर का मास दिया हुआ है 50 ग्राम एंड उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है 0.42 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. इट कंटेन्स सम मास ऑफ वाटर. तो यहाँ पे वेसल के साथ में है वाटर. ओके, उसका मास वी डोंट नो, M2 वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का दिया हुआ है 4.2 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. इसके अंदर हम डालने वाले हैं मेटल. ओके, सो अ मेटल इज पुट इन दिस. ओके, जिसका मास दिया है M3 से 20 ग्राम एंड द टेम्परेचर ऑफ द मेटल, water का temperature is also given to you over here. So the temperature of water is given as 20 degrees Celsius. So obviously water vessel में है तो vessel का भी temperature 20 degree आएगा. It goes without saying. So the metal is added into it. The temperature of the metal is given as 100 degrees Celsius. But obviously देख के पता चलता है ये hot object है तुम्हारा और ये दोनों cold object है. ठीक है. एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेटल का दिया हुआ है 0.3 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. सो आफ्टर स्टरिंग द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर. सो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज गिवन एज 22 डिग्री सेल्सियस. यू हैव टू फाइंड दिस, दैट इज़ द मास ऑफ वाटर. तो मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे देती हूँ हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट. बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. ओके, अभी देखो यहाँ पे तुम्हारा हॉट ऑब्जेक्ट क्या है, मेटल. सो मेटल हीट लूज करेगा एंड वाटर एंड कैलोरीमीटर इज गोइंग टू गेन हीट. ओके, सो हीट लॉस्ट बाय द मेटल, ओके, शुड बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द वेसल प्लस द हीट गेन्ड बाय द वाटर. तो यहाँ पे आ जाएगा M3C3 डेल्टा टी. डेल्टा टी कभी भी कैसे निकालोगे, ये 100 डिग्री है, उससे 22 पे आया तो 100 माइनस 22. हीट गेट बाय द वेसल, सो M1C1 डेल्टा टी. वेसल का डेल्टा टी कैसे निकालोगे, 20 से 100 पे गया, सो 100 माइनस 20 प्लस हीट गेन बाय वाटर M2C2 डेल्टा टी. अगेन डेल्टा टी वाटर का हम कैसे निकालेंगे, 20 से 100 पे गया है, सॉरी 20 से 22 पे गया है, सो 22 माइनस 20. सो मेटल के केस में 100 से 22 पे आया है तो 100 माइनस 22. वेसल के केस में 20 से 22 पे गया है, so in this case delta t will be 100 minus 22. Here it is going to be 22 minus 20. Here it is going to be 20. तो बाकी के values तुम substitute करके you will have to find out your M2. So you are going to solve this sum for homework and सबके answers comment section में आने चाहिए. Next lecture में we are going to deal with part 2 of calorimetry which deals with specific latent heat. Okay, I hope सबको ये समझा होगा. So please leave your comments in the comment section. See you soon again. Bye everyone. Take care.